Hello students. In the last lecture, we discussed about investigation at length. We discussed section 43 to 54, in which we discussed about who can make an application for investigation. It can be done by a tribunal, it can be done by the court of law, or it can be done by the partners. Okay, not less than 115 number may apply for the investigation. And if the tribunal is of the opinion that the investigation is necessary, then they will ask for some security amount to be deposited so that they can cover the cost of investigation. The government will be appointing one or more competent persons to be appointed as investigators. They will make inquiry into the affairs of the LLP, of the partners, designated partners, some other entity, employees. They may ask many things to them, and based on all the books of account, papers, documents, whatever they come across, okay, they will make a report, and the report shall be submitted to the respective authority, and further prosecution may be taken. Okay, those things were covered. Okay, we also discussed as to the search and seizure powers, which will be in accordance with the Code of Criminal Procedure. Okay, all these sections were discussed. Along with that, for how many days the custody of books of accounts can be kept with the inspector. Okay, in some cases it might be 30 days, in some cases it might be 6 months. Okay, different situations were discussed. Today we are going to discuss how some of the entities may be converted into LLP. Once they are converted into LLP, what will be the way forward? Okay, after that we'll be discussing about compromise, arrangement, winding up, dissolution, and application of some other act to LLP. Okay, मतलब ऐसा है कि कंपनीज एक्ट के कुछ कुछ प्रोविजंस LLP को भी एप्लीकेबल होंगे. ओके, तो आज हमारा डिस्कशन सेक्शन 55 से स्टार्ट होके सेक्शन 70 तक जाने वाला है, और उसके बाद के जो भी सेक्शंस हैं सेक्शन 71 ऑनवर्ड्स, वो मैंने आपके सेल्फ रीडिंग के लिए रखे हुए हैं. ओके, दैट इज हार्डली 1 to 1.5 पेज इन योर मॉड्यूल, तो आप अपने हिसाब से वो पढ़ सकते हैं. Let's proceed with section 55, which talks about conversion of a conventional partnership firm. जो हम normal partnership firm, unlimited liability वाला पढ़ते हैं, उसको हम convert करके LLP बना रहे हैं. That is covered in section 55. We can say second schedule. हमने इस चैप्टर के बिगिनिंग में 4 schedule देखे थे, 1st to 4th. तो conversion of partnership firm into LLP is covered in 2nd schedule. Conversion of private company to LLP is covered in 3rd schedule. And conversion of unlisted public companies. Please be careful. Public companies can be of 2 types. One is a listed, other is unlisted. तो listed के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है. Okay, it is talking about unlisted public company into LLP, which is covered in 4th schedule. ओके, अगर हम ऐसा करते हैं कि किसी एक पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी बनाते हैं, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एलएलपी बनाते हैं, या किसी एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी बनाते हैं, तो आगे जैसे ही वो एज एन एलएलपी रजिस्टर होगा, ओके, तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और उसका इफेक्ट क्या है, लेट्स सी. ओके, द रजिस्ट्रार on satisfying that a firm, private company or an unlisted public company has complied with the respective schedules. Respective माने second, third या fourth. Okay, firm to LLP है तो second,
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टू एलएलपी है तो थर्ड, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टू एलएलपी है तो फोर्थ। ओके, तो अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है ना, दिस इज प्रिटी मच इंपॉर्टेंट। आपने सब डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए ऐसा नहीं है ना, आपको ये भी देखना है कि रजिस्ट्रार आपके सबमिट किए हुए डॉक्यूमेंट्स या डिटेल से सेटिस्फाइड है या नहीं है। ओके, अगर वो है तो, है ना, क्या करेगा वो, दैट पर्सन विल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन सच फॉर्म एज द रजिस्ट्रार में डिटरमाइन, stating that the LLP is on and from the date specified in the certificate registered। तो जैसे हम कंपनी बनाते हैं तो हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, जिसको कंपनीज के केस में बर्थ सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, वैसा अब रजिस्ट्रार आपको एलएलपी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। मतलब वो ऐसा लेट्स से मेंशन कर देगा कि इस डेट से अब आप एक फर्म या कंपनी नहीं रहे, नाउ यू हैव बिकम अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। चलो पढ़ते हैं सबसेक्शन 2। द एलएलपी शेल विदिन 15 days of the date of registration inform the concerned registrar of firms or registrar of companies as the case may be with which it was registered earlier। है ना, मतलब क्या है कि अगर आप पहले पार्टनरशिप फर्म थे और अगर आप रजिस्टर्ड थे, हमें पता है कि जो कन्वेंशनल पार्टनरशिप फर्म है उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। पुरानी पार्टनरशिप फर्म जो हम देखते हैं, अनलिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाला, वहां पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। बट अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हो तो आपको अब उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। नाउ यू विल हैव टू इन्फॉर्म कि अब हमने हमारी जो फर्म थी उसको एलएलपी में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, तो वो भी होगा कौन, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, इसको इन्फॉर्म करना है। ओके, अगर आपका पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था तो बट ऑब्वियस आपने अपने आप को आरओसी के पास रजिस्टर करवाया होगा, या आपका एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी था तो भी आपने आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन करवाया होगा। तो आपको इन लोगों को भी, है ना, इन्फॉर्म विदिन 15 डेज। 15 डेज कहाँ से गिनना है, रजिस्ट्रेशन से, कि आप एज एन एलएलपी रजिस्टर हो गए उस दिन से लेके 15 दिन के अंदर अंदर आपको पुराने वाले रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है कि हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म का जो बेस था वो बदल दिया है। पहले हम अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप थे, अब लिमिटेड हो गए हैं, या पहले हम कंपनी थे और अब एलएलपी हो गए हैं। ओके, अपॉन सच कन्वर्जन द पार्टनर्स of the firm, the shareholders of private or public company, as the case may be, okay, shall be converted to the partners of the LLP। मतलब आप पहले पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर थे तो आप एलएलपी में पार्टनर हो जाएंगे, और पहले अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर थे तो नाउ यू विल बिकम पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी। बट ऑब्वियस है ना, पहले आप शेयर होल्डर कहे जाते थे, नाउ विल बी कॉल्ड अ पार्टनर। अपॉन सच कन्वर्जन on and from the date of certificate of registration, the effect of conversion shall be such as specified in the respective schedule। मतलब वहां पे सेकेंड स्केड्यूल में जो भी लिखा होगा, थर्ड में जो भी लिखा होगा, वो आपको एप्लीकेबल हो जाएगा। कब से, जिस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ तब से। ओके, लेट्स सी द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force। इस मतलब इस लाइन का क्या मतलब है कि किसी और एक्ट में एज ऑफ नाउ क्या लिखा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ओके, मतलब इस एक्ट में क्या लिखा है वो मायने रखता है, किसी और एक्ट में क्या लिखा है वो अभी अभी के लिए मायने नहीं रखता है, इस सेक्शन के लिए मायने नहीं रखता है। ओके, तो जैसे ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू हो जाएगा, ओके, तो अब एक नया एलएलपी फॉर्म हो गया। ओके, जो पुराने पार्टनरशिप फर्म या कंपनी के पास जितनी भी असेट्स लायबिलिटीज जो कुछ भी था
एनीथिंग, वो अब किसका असेट या लायबिलिटी बन जाएगा? दैट विल बिकम असेट और लायबिलिटी ऑफ द एलएलपी। ऑल टेंजिबल, intangible, movable, immovable, interest, right, privilege, liability, obligations, ओके, जो पहले किसी के थे फर्म या कंपनी के, वो अब किसके हो जाएंगे? शेल वेस्ट इन द, मतलब अब वो सारे पावर, सारी लायबिलिटीज एलएलपी की हो जाएंगी। ओके, एंड द फर्म और द कंपनी एज द केस में बी शेल बी डीम्ड टू बी डिसॉल्व्ड, मतलब जो पुराना पार्टनरशिप फर्म था या पुरानी कंपनी थी वो डिसॉल्व हो जाएगा। ओके, और उनको उनका नाम रजिस्ट्रार ऑफ फर्म या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से स्ट्राइक डाउन किया जाएगा, है ना? स्ट्राइक ऑफ, स्ट्राइक डाउन नहीं होगा, क्या होगा? स्ट्राइक ऑफ। जब भी हम किसी का नाम रजिस्टर में से निकाल देते हैं तो उसको बोलते हैं स्ट्राइक ऑफ। ओके, ये हो गया इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 59। अभी फॉरेन एलएलपी के बारे में डिस्कशन नहीं है, तो क्या लिखा हुआ है? द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स फॉर provision in relation to establishment of place of business by foreign LLP within India and carrying on their business by applying or incorporating with such modifications as appear appropriate। तो जैसे फॉरेन कंपनीज को प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, वैसे ही किसको एप्लीकेबल हो जाएंगे? फॉरेन एलएलपी। फॉरेन कंपनी कौन होता है? जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट होता है, पर जिसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ओके, या तो फिजिकली या तो वर्चुअली, आइदर दे शुड हैव फिजिकल प्रेजेंस और दे शुड हैव वर्चुअल प्रेजेंस। माने ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं तो भी इसको प्लेस ऑफ बिजनेस कहा जाता है। ओके, दैट वाज अबाउट कन्वर्जन ऑफ सम एंटिटीज इनटू एलएलपी वंस, और उसका प्रोसेस क्या होता है, हमें किसको इन्फॉर्म करना होता है। ओके, अब जब ये सब किया जाता है ना तो बहुत सारी चीजें बीच में आती है, यहाँ पे इतना लेंथ पे डिस्कशन नहीं है। पर पहले जैसे मान लो कि अगर मैं किसी पार्टनरशिप फर्म का क्रेडिटर था, ओके, और अब मैं एलएलपी का क्रेडिटर बन जाऊंगा, तो वो मेरे लिए नुकसान है। क्योंकि पहले अगर पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स में से मुझे अगर पैसा नहीं मिलता था, तो मैं पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स में से भी पैसा ले सकता, अब वो पॉसिबल नहीं। द नेक्स्ट सेक्शंस विल टॉक अबाउट कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स। ओके, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कॉम्प्रोमाइज क्या होता है ना? तो वी वेरी वेल नो कि जब कुछ दो लोगों के बीच में किसी तरह का डिस्प्यूट हो, कोई झगड़ा हो, है ना, किसी तरह का कोई बात पे लेके उनका कंसेंसस ना बन रहा हो, है ना, एक बात पे आने के लिए वो सहमत ना हो, तो तब झगड़ा होता है ना? देयर इज अ डिस्प्यूट इन बिटवीन देम। ओके, पर और इसकी वजह से लिटिगेशन होता है ना, केस चलता है, ये होता है वो होता है। पर वो एक लेवल पे आके ऐसा डिसाइड करते हैं कि चलो इसको खत्म करते हैं, और थोड़ा सा तुम कॉम्प्रोमाइज करो, थोड़ा सा मैं करता हूँ, और इस बात को यहीं पे खत्म करते हैं। समाधान जिसे क्या कहा जाता है, समाधान कर लेते हैं, और आगे केस को कंटिन्यू नहीं करते हैं। वी शुड नॉट कंटिन्यू द केस फर्दर। इसे कहा जाता है कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इन द केस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स, है ना? ऐसा हर तरह के बिजनेस में पॉसिबल है, नॉट नेसेसरी कि सिर्फ एलएलपी में होता है, ऐसा इवन कंपनीज में सोल प्रोप्राइटरशिप में भी हो सकता है। ये बात अलग है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए एज सच कोई अलग कानून नहीं है। बढ़ते हैं आगे। ओके, वेयर अ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इज प्रपोज्ड। प्रपोज्ड का मतलब अभी हमने सिर्फ बात रखी है कि ऐसा करते हैं, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज हमेशा दोनों साइड से अग्री होना चाहिए। मैं ऐसा बोल दूं कि चलो मुझे आपको 1 लाख रुपए देना है, मैं 70,000 दे देता हूँ, बात खत्म करो, नहीं चलेगा। वो सामने वाले को भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए।
तो हम क्या करेंगे, पहले कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट को प्रपोज करेंगे, बात रखेंगे हमारी। ओके, किसके बीच में ये कॉम्प्रोमाइज हो रहा है? बिटवीन अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड क्रेडिटर्स और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स। ओके, ये कॉम्प्रोमाइज किन दो पार्टीज के बीच में हो रहा है? तो हमने एप्लीकेशन दिया, प्रपोज किया, मतलब क्या किया है, वी हैव गिवन एन एप्लीकेशन। किसको एप्लीकेशन दिया है? टू द ट्रिब्यूनल। ओके, आगे बढ़ते हैं। द ट्रिब्यूनल में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एलएलपी और एनी ऑफ इट्स क्रेडिटर्स और पार्टनर्स, ओके, of the LLP, और in the case of LLP which is being wound up, जिस LLP को हम क्या कर रहे हैं, we are winding up, बंद कर रहे हैं, we are in the process of closing the business। तो तब कौन होगा पिक्चर में? लिक्विडेटर। मतलब पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू है तो कौन कौन एप्लीकेशन दे सकता है? पार्टनरशिप फर्म खुद, उसके कोई पार्टनर्स या क्रेडिटर्स। बट अगर पार्टनरशिप फर्म को बंद कर रहे हैं, वी आर क्लोजिंग द बिजनेस, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग द बिजनेस, देन द एप्लीकेशन विल बी मेड बाय द लिक्विडेटर। ओके, तो एप्लीकेशन दे दिया, किसने दिया वो क्लियर हो गया। अब जैसे ही एप्लीकेशन आएगा तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा? सीधा ये लाइन से ये पढ़ेंगे, द ट्रिब्यूनल मे ऑर्डर अ मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स और द पार्टनर्स, ओके, टू बी कॉल्ड, मीटिंग बुलाएंगे, मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे एंड मीटिंग को कंडक्ट करेंगे इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ओके, तो ऑब्वियस है कि अगर आपको कॉम्प्रोमाइज करना है तो एक दूसरे से मिलना जरूरी है, बात करना जरूरी है और किसी एक बात पे सहमत होना भी जरूरी है। तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा? दे विल आस्क दी पर्सन्स टू ऑर्गेनाइज अ मीटिंग। क्रेडिटर्स के साथ सेटलमेंट है तो उनको बुलाओ, पार्टनर्स के साथ है तो पार्टनर्स मिलेंगे। ओके, इफ अ मेजॉरिटी, ध्यान रखना है यहाँ पे, रिप्रेजेंटिंग 3/4 इन द वैल्यू, 3/4 इन द नंबर्स नहीं है। किसी फर्म के 50 क्रेडिटर्स हैं तो नंबर ऑफ क्रेडिटर्स का 3/4 नहीं है ना, उन क्रेडिटर्स ने कुल मिला के पार्टनरशिप फर्म को मान लो कि 2 करोड़ रुपए का गुड्स या सर्विसेज या लोन दिया हुआ है, कैन बी एनीथिंग। तो उस 2 करोड़ का 3/4 माने 1.5 करोड़ के क्रेडिटर्स किसी चीज के लिए रेडी होने चाहिए। आपको कंसेंट लेना है कॉम्प्रोमाइज के लिए, है ना, कम ज्यादा सेटलमेंट करना है, कम ही होता है, ज्यादा तो एनीवे नहीं होता है ना, कम पैसों में सेटलमेंट करना है तो उसके लिए किसकी हाँ होनी चाहिए? है ना, मैं तो पैसा दे रहा हूँ पर सामने पैसा जो ले रहा है उसकी हाँ होनी चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, हम कम तो कम पैसा एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, पर 3/4 ऑफ नंबर ऑफ क्रेडिटर्स नहीं, 3/4 इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स। नंबर ऑफ क्रेडिटर्स 50 है पर उन्होंने कुल मिला के 2 करोड़ का क्रेडिट दिया है, तो 2 करोड़ का 3/4 दैट इज 1.5 करोड़। तो मान लो कि 50 में से 10 ही लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने टोटल 1.5 करोड़ का क्रेडिट दिया है। अगर वो 10 लोग भी हाँ बोल देंगे तो चलेगा। ओके, तो 3/4 इन दी वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स और पार्टनर्स एट द मीटिंग क्या करते हैं? अग्री करते हैं टू एनी कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। ओके, तो अगर उन लोगों ने हाँ बोल दिया तो आगे क्या होगा? इट विल बी सैंक्शनड। अगर ट्रिब्यूनल ने सैंक्शन कर दिया तो वो सबके ऊपर कैसा रहेगा? बाइंडिंग। बाइंडिंग का मतलब अब कोई मना नहीं बोल सकता है, नो बडी कैन डिनाई। पहले अगेन किसने प्रपोज किया कॉम्प्रोमाइज? या क्रेडिटर्स या पार्टनर्स या एलएलपी या लिक्विडेटर, उन्होंने प्रपोज किया और ट्रिब्यूनल को बताया कि हम किसी एक तरह का कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। ट्रिब्यूनल क्या करेगी? दे विल कॉल फॉर अ मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स और पार्टनर्स। इस मीटिंग में कितने लोगों की हाँ होनी चाहिए? 3/4 इन दी वैल्यू। अगर उन लोगों ने हाँ बोल दिया कि हम इस कॉम्प्रोमाइज को अग्री करते हैं, और अगर, मतलब जरूरी नहीं है कि उन लोगों ने हाँ बोल दिया, उसके बाद किसकी हाँ होनी चाहिए? ट्रिब्यूनल की। एक बार ट्रिब्यूनल ने हाँ बोल दिया तो ये जो लेट्स से उन लोगों ने एक डिसाइड किया है वो सबके ऊपर बाइंडिंग होगा। तो बाकी के जो 1/4 लोग हैं वो ऐसा बोलेंगे कि भाई नहीं, हमको एक्सेप्टेबल नहीं है,
तो उनकी बात को माना नहीं जाएगा, है ना। 3/4 ने हाँ बोल दिया मतलब कहानी खत्म। ओके, तो किसके किसके ऊपर बाइंडिंग होगा? ऑन द क्रेडिटर्स, पार्टनर्स एंड एलएलपी। अगर बिजनेस चल रहा है तो, अगर वो बिजनेस वाइंडिंग अप हो रहा है तो उसके लिक्विडेटर एंड कॉन्ट्रीब्यूटर इसको भी एप्लीकेबल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट, थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, नो ऑर्डर shall be made unless the tribunal is satisfied that the LLP or any other person, जिस किसी भी इंसान ने एप्लीकेशन दिया है उसने हर इम्पोर्टेंट बात को एफिडेविट पे या अदरवाइज, हर इम्पोर्टेंट बात को, ध्यान रखना सारी बातों को नहीं, पर सारी इम्पोर्टेंट बातों को ट्रिब्यूनल के सामने प्रेजेंट कर दिया था। मतलब अगर मान लो कि एज अ क्रेडिटर मुझे किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज करना है, तो मैंने ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दिया कि भाई इस एलएलपी के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज करना चाहता हूं, तो उसको वो हर इम्पोर्टेंट बात जो ट्रिब्यूनल के जानने के लिए नेसेसरी है वो बतानी चाहिए। क्या क्या बतानी चाहिए? हर मटेरियल फैक्ट इंक्लूडिंग द लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन, ओके, एंड पेंडेंसी ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स। आपके सामने अगर किसी तरह का इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग चल रहा है, पेंडिंग है, इन प्रोसेस है, तो ये सारी बातें आपको ट्रिब्यूनल के सामने रखनी है। इन सब बातों को कंसीडर करने के बाद ही ट्रिब्यूनल अपना ऑर्डर देगी कि हमें कॉम्प्रोमाइज करना है, अरेंजमेंट करना है या नहीं है। ओके, एन ऑर्डर मेड बाय द ट्रिब्यूनल अंडर सबसेक्शन 2, कौन सा ऑर्डर दिया कि ये जो कॉम्प्रोमाइज आप लोगों ने डिसाइड किया है वो फाइनल है। ओके, तो ऑर्डर आपको फाइल करना है बाय द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज। ध्यान रखना है ना, प्रोसेस बराबर याद रखो। पहले आपने डिसाइड किया कि हमें क्या करना है, वी वांट टू गो फॉर अ कॉम्प्रोमाइज, फॉर दैट यू आर मेकिंग एन एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल क्या बोलेगा? प्लीज ऑर्गेनाइज अ मीटिंग। मीटिंग में कितने लोगों की हाँ होनी चाहिए? 3/4 इन दी वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स और पार्टनर्स, अगर उन लोगों ने हाँ बोल दिया, और अगर ट्रिब्यूनल भी इस बात से सहमत है तो वो लोग ऑर्डर पास कर देंगे इस चीज के लिए कि आपने जो भी डिसाइड किया है कॉम्प्रोमाइज, उसके लिए हम रेडी हैं, है ना। और ये ऑर्डर आपको फाइल करना है विथ द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स विद इन 30 डेज। ओके, अगर ये नहीं किया तो क्या होगा? लेट्स सी। अगर इसमें किसी तरह का डिफॉल्ट किया गया, आपने 30 डेज में रजिस्ट्रार को नहीं बताया, ओके, तो हर डेजिग्नेटेड पार्टनर को कम से कम 10,000 रुपये का पेनल्टी होगा। ओके, और अगर ये डिफॉल्ट कंटिन्यूइंग नेचर का है तो ₹100 पर डे, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ, मतलब ये 10,000 का पेनल्टी एलएलपी को भी लगेगा ना, और जो ₹100 पर डे का पेनल्टी है वो भी दोनों को लगेगा, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 लाख फॉर एलएलपी। मतलब ये 100 करते करते मैक्सिमम 1 लाख फॉर एलएलपी एंड मैक्सिमम 50,000 फॉर एवरी, ईच एंड एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर। मतलब 4 पार्टनर हैं तो चारों का 50,000-50,000 तक का लायबिलिटी आ सकता है। आएगा ही ऐसा जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। ओके, बढ़ते हैं आगे। द ट्रिब्यूनल में एट एनी टाइम आफ्टर एन एप्लीकेशन हैज बीन मेड स्टे द कमेंसमेंट और कंटिन्यूएशन ऑफ एनी सूट और प्रोसीडिंग्स। ओके, मतलब क्या है कि आपने कॉम्प्रोमाइज के लिए एप्लीकेशन दिया है, ट्रिब्यूनल ने कॉम्प्रोमाइज के लिए हाँ बोल दिया है और ये सेटलमेंट चल रहा है, तो जब तक, या तो ऐसा समझो नहीं,
ट्रिब्यूनल ने हाँ नहीं बोला है, माय मिस्टेक। आपने एप्लीकेशन दिया फॉर कॉम्प्रोमाइज, तो इसके बाद ट्रिब्यूनल ने क्या कहा था, मीटिंग करो, मीटिंग में कंसेंट लाओ, उसके बाद हम ऑर्डर पास करेंगे। तो ये सब कुछ होगा ना, ओके। जब तक ये सब चल रहा है ना, तब तक कोई भी नया केस एलएलपी के सामने स्टार्ट नहीं होगा, और जो एग्जिस्टिंग केस है वो अभी के लिए सस्पेंड हो जाएगा। मतलब ट्रिब्यूनल ने एप्लीकेशन को जब तक डिस्पोज नहीं किया, डिस्पोज मतलब कि उसने उस बात पे कोई भी अगर अपना डिसीजन जब तक नहीं दिया है, तब तक, अगेन समझो, एलएलपी पार्टनर और क्रेडिटर या तो लिक्विडेटर ने एप्लीकेशन दिया कि कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, अभी ये एप्लीकेशन पड़ा हुआ है ट्रिब्यूनल के पास, ट्रिब्यूनल ने कोई डिसीजन नहीं लिया है, तो जब तक वो डिसीजन न लिया गया हो, तब तक ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो ऐसा अनाउंसमेंट कर देंगे कि एज ऑफ नाउ, जब तक हम किसी फाइनल डिसीजन पे ना पहुंचे, तब तक एलएलपी के सामने कोई नया केस नहीं हो सकता है, और जो एग्जिस्टिंग केस चल रहा है वो अभी के लिए सस्पेंड हो जाएगा, है ना, उसको स्टे कर देते हैं। इज इट ओके? क्या कर देंगे? ओके, आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू एनफोर्स कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। एनफोर्स का मतलब होता है कि एक बार ट्रिब्यूनल ने डिसाइड कर दिया, ऑर्डर पास कर दिया कि हम अरेंजमेंट करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, ऑर्डर पास कर दिया, रजिस्ट्रार को 30 डेज में इन्फॉर्म कर दिया, तो खाली डिसाइड करने से कुछ नहीं होता है, उसके ऊपर एक्ट भी करना पड़ता है, उसके ऊपर काम भी करना पड़ता है। ओके, तो ट्रिब्यूनल के पास ये भी पावर है कि वो इसको एनफोर्स कर सकते हैं। आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एनफोर्सिएबिलिटी, ओके, बाय लॉ, ऐसा एक टॉपिक पढ़ा होगा। एनफोर्सिएबल मतलब इट इज सस्टेनेबल इन द आइज ऑफ लॉ, इट इज वैलिड इन द आइज ऑफ लॉ। इसको हम कोर्ट ऑफ लॉ में जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं कि सर ऐसा डिसाइड हुआ था, अभी फॉलो नहीं हो रहा है, डिसाइड हुआ था पर फॉलो नहीं हो रहा है, तो हम उसको एनफोर्स कर सकते हैं। ओके, तो दीज आर द पावर्स अवेलेबल विद द ट्रिब्यूनल। तो जब ट्रिब्यूनल ने सेक्शन 60 में ऑर्डर दे दिया कि हम कॉम्प्रोमाइज के लिए रेडी हैं, तो उसके पास क्या क्या पावर है ध्यान रखो। इट शेल हैव पावर टू सुपरवाइज, क्या चल रहा है ना, कॉम्प्रोमाइज का जो प्रोसेस है वो प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं, उसको वो सुपरवाइज कर सकते हैं। ओके, मे एट द टाइम ऑफ मेकिंग सच ऑर्डर और एट एनी टाइम देयर आफ्टर, वो लोग क्या दे सकते हैं, दे में गिव डायरेक्शंस, या तो उसमें क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जो भी उनको ठीक लगेगा वो। बट मॉडिफिकेशन क्यों करेंगे, उनको लगेगा कि मॉडिफिकेशन प्रॉपर वर्किंग के लिए नेसेसरी है, तो वो लोग मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। ओके, इफ द ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड, ट्रिब्यूनल को अगर ऐसा लगता है कि हमने ऑर्डर तो पास कर दिया, पर ये सही तरह से सेटिस्फैक्टरी मैनर में, है ना, बिना मॉडिफिकेशन के या मॉडिफिकेशन करने के बाद भी इसको हम सही तरह से एनफोर्स नहीं कर सकते, मतलब अभी भी हमें इसमें कहीं कमी लग रही है। ऐसा होता है कि हम कोई बात डिसाइड कर लेते हैं, फिर हमें समझ आता है कि नहीं, है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा है, तो क्या कर सकते हैं, आइदर ऑन इट्स ओन मोशन, या तो अपने आप, या तो कोई एप्लीकेशन देगा तो, ओके, बोलेंगे कि काम करो, कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल नहीं है, हम एलएलपी को बंद ही कर देते हैं, लेट्स क्लोज डाउन द अफेयर्स ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अगर कॉम्प्रोमाइज का काम सही तरह से न चल रहा हो तो मॉडिफिकेशन करने के बाद भी, मतलब पहला पॉसिबिलिटी क्या करेंगे वो लोग, मॉडिफिकेशन। बट अगर मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है तो दे विल गो फॉर कॉम्प्रोमाइज, सॉरी, दे विल गो फॉर वाइंडिंग अप। ओके, so that was about enforcing the compromise or arrangement।
तो ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि उसको वो सुपरवाइज कर सकते हैं, टाइम टाइम पे डायरेक्शंस दे सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, और अगर मॉडिफिकेशन करने के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि कॉम्प्रोमाइज का सही तरह से वर्कआउट करना पॉसिबल नहीं है, देन दे विल पास एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 64 दैट द एलएलपी शैल बी बाउंड। ओके, तो पहला देखा कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, दूसरा देखेंगे रिकंस्ट्रक्शन और अमालगमेशन। ओके, अमालगमेशन का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा एलएलपी अपना रिस्पेक्टिव बिजनेस को बंद कर देते हैं और एक नया एलएलपी बनाते हैं, है ना, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए वो क्या करेंगे, जैसे वोडाफोन और आइडिया का मर्जर बोलते हैं ना, वो कंपनी लेवल पे है ना, वैसा हम एलएलपी लेवल पे भी सेम चीज कर सकते हैं। तो उसको अमालगमेशन बोलते हैं। अमालगमेशन में नई एंटिटी का आना कंपलसरी है। नई एंटिटी का मतलब क्या होगा? तीन एलएलपीज हैं, ए बी और सी, उन्होंने अपना रिस्पेक्टिव बिजनेस बंद कर दिया और एबीसी नाम से एक नया एलएलपी बना दिया, तो पुराना बंद होगा और नया स्टार्ट होगा। ओके, वेयर इज इन द केस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन क्या होगा? रिकंस्ट्रक्शन नॉर्मली कब होता है? व्हेन इफ यू टॉक अबाउट लेट्स से अ कंपनी, तो जब कोई भी कंपनी कंटिन्यूअसली लॉस मेकिंग हो, उस केस में कंपनी के अफेयर्स को फिर से रीऑर्गेनाइज करना नेसेसरी बनता है। जैसे हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, है ना, वैसा यहाँ पे कंपनी के कैपिटल को, कंपनी के बैलेंस शीट को, जो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है, उसको थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे कोई नया कंपनी पिक्चर में या नया एलएलपी पिक्चर में नहीं आएगा। जो एग्जिस्टिंग एलएलपी है उसी के अंदर हम लोग बहुत सारे चेंजेस करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन। तो दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रिकंस्ट्रक्शन और अमालगमेशन। लेट्स सी, where an application under section 60 for sanctioning of compromise or arrangement is made between LLP and creditors or partners, okay, and it is shown to the tribunal। मतलब हमने सेक्शन 60 में देखा था कि एलएलपी, पार्टनर, क्रेडिटर या लिक्विडेटर एप्लीकेशन दे सकता है कॉम्प्रोमाइज के लिए। ओके, और ट्रिब्यूनल को ऐसा बताया जाता है कि जो भी कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट प्रपोज किया गया है, ओके, फॉर द पर्पस ऑफ और इन कनेक्शन विद द स्कीम फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एलएलपी, ओके, तो वो हमने जो प्रपोज किया था, इट वाज वन काइंड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ओनली, एंड अंडर द स्कीम whole or any part of the undertaking, property or liability of any LLP, okay, is to be transferred to another LLP। मतलब पूरा एलएलपी या उस एलएलपी का कुछ पार्ट या उस एलएलपी की कुछ असेट्स या उसकी कुछ लायबिलिटीज, होल और एनी पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग, प्रॉपर्टी और लायबिलिटीज ऑफ द सेड एलएलपी। सेड मतलब कौन सा? जिसके रिकंस्ट्रक्शन के बारे में हमने एप्लीकेशन दिया है, ओके, उसको हम ट्रांसफर करेंगे किसी और एलएलपी को। तो हम ट्रांसफर करेंगे मतलब हम बनेंगे ट्रांसफरर, और जिसको ट्रांसफर करेंगे वो बनेंगे ट्रांसफरी, मतलब हम बनेंगे सेलर और सामने वाला बनेगा परचेजर। ओके, द ट्रिब्यूनल में आइदर बाय द ऑर्डर सैंक्शन इन द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट और बाय सब्सीक्वेंट ऑर्डर क्या कर देंगे बोलो? अब यहाँ पे हम क्या करें? वी आर सेलिंग अवर एंटायर बिजनेस और अ पार्ट ऑफ द बिजनेस, है ना। कभी कभी हमें लगता है कि किसी एक एलएलपी के अंदर चार अलग अलग तरह के बिजनेस चल रहे हैं, पर कोई एक बिजनेस ऐसा है जिसको चलाने के लिए हम लोग कैपेबल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? वो वाला जो यूनिट है, वो वाला जो पार्ट है, उसको किसी और को बेच सकते हैं, है ना। इसको भी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बिजनेस कहा जाता है। तो एलएलपी, सॉरी, ट्रिब्यूनल किस तरह का ऑर्डर पास करेगा? टू ट्रांसफर, ओके, ऑफ द एलएलपी एज द होल और एनी पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग, प्रॉपर्टी और लायबिलिटी। मतलब ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर देगा कि भाई ये पूरा एलएलपी या इसका कोई एक यूनिट
या कुछ असेट्स या लायबिलिटीज आप किसी और को ट्रांसफर कर दो। चलो दूसरा, अगर हमने हमारा एलएलपी ट्रांसफर कर दिया तो हमारे सामने जो केस चल रहे थे, हमारा XYZ एलएलपी है और हम अपना बिजनेस बेच रहे हैं PQR एलएलपी को, है ना, तो क्या होगा, जो केसेस हमारे सामने चल रहे थे वो अब PQR के सामने चलेंगे। द डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप, है ना, वाइंडिंग अप में क्या होता है, हम हमारी सारी एसेट्स को वन बाय वन बेचते हैं, लायबिलिटीज को सेटल करते हैं। ऐसा कुछ नहीं किया, बिजनेस बंद किया पर एसेट्स को बेचा नहीं है, उसको सीधा किसी को ट्रांसफर कर दिया है। बेचा मतलब ऑब्वियसली बिजनेस तो बेचा है, पर वाइंडिंग अप में हम क्या करते हैं, वी डू इट वन बाय वन, एक एक एसेट को बेचते हैं, लायबिलिटीज को सेटल करते हैं। So what are we doing? Dissolution without binding up of any transferor, limited liability partnership. चलो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम पूरा बिजनेस नहीं बेच रहे हैं, तो हमारा बिजनेस भी कंटिन्यू रहेगा और सामने वाला भी कंटिन्यू रहेगा। The provision to be made for any person who within such time and in such manner, okay, as the tribunal directs, dissent from the compromise. Dissent का मतलब होता है to say no to the arrangement. To say no to the compromise या रिकंस्ट्रक्शन। ओके, भाई मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, तो उसके लिए भी आपको मौका दिया जाता है कि आप एलएलपी के पार्टनर हैं, ओके, पर आप इस बात से सहमत नहीं हो सकते हैं, मतलब इट इज पॉसिबल कि मेजोरिटी ऑफ द एलएलपी के पार्टनर्स ने हाँ बोल दिया कि हम बिजनेस बेच देते हैं, पर कुछ कुछ पार्टनर ऐसे भी हो सकते हैं कि जो इस चीज के लिए राजी नहीं है, है ना, दे आर नॉट अग्रीइंग टू दिस थिंग, तो उसको कहा जाता है डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। कंपनी के केस में डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स कहा जाता है, पार्टनरशिप के केस में डिसेंटिंग पार्टनर्स कहा जाता है। एंड सच इंसिडेंटल कॉन्सिक्वेंशियल एंड सप्लीमेंट्री मैटर्स एज आर नेसेसरी टू सिक्योर द रिकंस्ट्रक्शन और अमालगमेशन। तो ट्रिब्यूनल इन सारी बातों को, कि भी आप पूरा अंडरटेकिंग ट्रांसफर कर दो, जो केस पहले एक एलएलपी के सामने चल रहे थे वो आपके सामने चलेंगे। ओके, इट विल बी डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप। ओके, कोई मना बोल सके किसी बात के लिए, है ना, जरूरी नहीं है कि सब चीज सब लोग एक्सेप्ट कर लें, तो आप डिसेंट भी कर सकते हो। और इससे रिलेटेड जो भी दूसरी बातें हैं उसके लिए ट्रिब्यूनल अपना ऑर्डर पास कर सकता है। बढ़ते हैं आगे। प्रोवाइडेड दैट नो कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट proposed for the purpose of or in connection with the scheme of amalgamation of LLP which is being bound up with any other limited liability partnership or partnerships shall be sanctioned unless the tribunal has received a report from the registrar that the affairs of the LLP have not been conducted in a manner prejudicial to the interest of its partners or public interest। मतलब ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप का या ट्रांसफर का ऑर्डर पास करेगी, बट कब, जब उसको रजिस्ट्रार के पास से एक रिपोर्ट मिले और उस रिपोर्ट में ऐसा लिखा हो कि इस एलएलपी ने अपना बिजनेस कभी भी इस तरह से कंडक्ट नहीं किया है जिसकी वजह से पार्टनर या पब्लिक की वो प्री जुडिशियल हो, मतलब इट इज हार्मफुल टू द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर्स और पब्लिक इंटरेस्ट। ऐसा कभी भी इस एलएलपी ने किया नहीं है, माने नेगेटिव रिपोर्ट जाएगा, नेगेटिव इन सेंस वो एलएलपी के लिए पॉजिटिव है ना। तो जब तक ट्रिब्यूनल को रजिस्ट्रार के पास से रिपोर्ट नहीं मिलेगा, ओके, तो रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ होना चाहिए कि जो भी एलएलपी ने अपना बिजनेस किया है वो कभी भी उन लोगों ने इस तरह से इस मैनर में बिजनेस नहीं किया है कि वो पार्टनर्स को या पब्लिक इंटरेस्ट को हार्मफुल, है ना। जब ये रिपोर्ट जाएगा उसके बाद ही ट्रिब्यूनल रिस्पेक्टिव ऑर्डर पास करे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो ऑर्डर फॉर द रिजोल्यूशन अंडर सब क्लॉज 3 shall be made unless the official liquidator has on the scrutiny of books and papers made a report to the tribunal। ओके, तो अब जहां पे कंपनी वाइंडिंग अप हो रहा है
है ना, सॉरी एलएलपी वाउंड अप हो रहा है, वाउंड अप हो रहा है तो सारा अफेयर्स किसके हाथ में है, ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज आर इन द हैंड्स ऑफ लिक्विडेटर। ओके, तो उस केस में क्या होगा, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन इन दिस केस, ट्रिब्यूनल किसके पास से, लिक्विडेटर के पास से रिपोर्ट मांगेगा कि आप बताओ, है ना, जैसा इसके पहले वाले केस में रजिस्ट्रार ने बताया था ना कि किसी भी तरह से उन लोगों ने गलत वे में बिजनेस नहीं चलाया है, ये सेम रिपोर्ट किसको देना पड़ेगा, लिक्विडेटर, उसके बाद ही ट्रिब्यूनल आगे का प्रोसेस करेगा। ओके, मूविंग ऑन, सबसेक्शन 2 में आते हैं, है ना, आगे जो पढ़ा था वो पूरा सबसेक्शन 1 था, where an order under this section provides for the transfer of property liabilities, then by virtue of the order, अब वो किसका हो जाएगा, ट्रांसफरी एलएलपी का हो जाएगा। ओके, एंड इन केस ऑफ एनी प्रॉपर्टी इफ द ऑर्डर सो डायरेक्ट्स इट शुड बी फ्रीड फ्रॉम एनी चार्ज। फ्रीड फ्रॉम एनी चार्ज का मतलब क्या है, जो असेट हमने नई एलएलपी को दिया है, जो बाइंग एलएलपी है जिसने हमारे पास से असेट खरीदी है ना, तो वो अगर अकॉर्डिंग अरेंजमेंट कर देता है पैसों का, तो फ्री फ्रॉम चार्ज का मतलब क्या है, सपोज मैंने कोई बिल्डिंग नई एलएलपी को ट्रांसफर किया है, पर इस बिल्डिंग के ऊपर मैंने 1 करोड़ का लोन लिया हो और ये बिल्डिंग मैंने ट्रांसफर कर दिया सामने वाले को 5 CR में, तो क्या होगा, ये 5 CR में से वो 1 CR बैंक को देगा और 4 CR हमें देगा, तो उसने बैंक को दे दिया, मतलब अब बैंक का इस प्रॉपर्टी के साथ कोई लेना देना नहीं है, इट इज फ्री फ्रॉम चार्ज। है ना, हम दो तरह के चार्जेस पढ़ते हैं, फिक्स्ड चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज। ओके, तो अब हमने क्या कर दिया है, वी हैव फ्रीड द बिल्डिंग, ऐसा कोई भी एसेट हो सकता है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल बिल्डिंग का दिया है, वो प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, लैंड हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, है ना। Within 30 days after making the order, every LLP in relation to which the order is made shall cause a certified copy thereof to be filed with the registrar. Okay? इस सेक्शन में जो भी ऑर्डर पास होगा, किस तरह का ऑर्डर पास होगा, कि आपको अपनी एसेट्स, पूरा बिजनेस या प्रॉपर्टी लायबिलिटी सामने वाली एलएलपी को देना है, इसका ऑर्डर पास ऑन हो चुका है, तो ये कॉपी ट्रिब्यूनल आपको देगा और आपको किसको देना है, टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 days। इसमें किसी भी तरह का डिफॉल्ट है तो ऑब्वियसली आगे जो पेनल्टी पड़ा था वो सेम टू सेम पेनल्टी है, एलएलपी और डेजिग्नेटेड पार्टनर को कम से कम 10,000 रुपए का पेनल्टी लगेगा। ओके, कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट होगा तो 100 पर डे का लगेगा, और एलएलपी के लिए मैक्सिमम 1 लाख, और हर डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए मैक्सिमम 50,000 तक का पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड है। ओके,